Hello everyone. So today we are talking about digital signature. So in this topic today, we will talk about the meaning of digital signature. We will also be discussing why digital signature is important in the modern time. And we will discuss about the process of creation of digital signature as well as the verification of digital signature. So what are the provisions under the Information Technology Act 2000 regarding creation of digital signature as well as the verification of digital signature, so that we will discuss in today's lecture. So coming to the introduction first. So when we talk about authenticity of the documents, now one of the traditional mode of authenticating of the document, that is by putting your handwritten signature. सिंपली किसी भी डॉक्यूमेंट को जब हम ऑथेंटिसिटी की बात करते हैं देन वी सी जो ट्रेडिशनल मेथड हम फॉलो करते हैं वो हैंड रिटन सिग्नेचर होता है। और जब भी कोई पर्सन किसी डॉक्यूमेंट को साइन करता है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज एक्सेप्टिंग द थिंग्स और द कंटेंट्स which is there in that document. In the modern time, the alternate to do these things, जब हम ऑथेंटिसिटी की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पॉपुलर जो फॉर्म है आज की डेट में, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इन द ऑनलाइन फॉर्म, ई डॉक्यूमेंट्स or electronic documents. Now, the authenticity of the electronic documents in the modern time, that is done by the digital signature. And a digital signature, what it is an attachment to any piece of electronic information. कोई भी electronic information है. So it is just as an attachment that signature is put in the electronic form on that document, whereby the authenticity of that document is recognized. And secondly, ये चीज को भी ensure करता है that that document it belongs to the particular person who has sent that document. Now we come to the definition of digital signature. So it is defined under section 2(1)(p) of Information Technology Act 2000. Now, what is digital signature as per this definition? Now, digital signature, it means authentication of electronic records by a subscriber by means of electronic methods. Or secondly, it says that authenticity of these documents when it is done by the user or by a subscriber by the procedure which is prescribed under सेक्शन 3 ऑफ IT एक्ट 2000. और सेक्शन 3 जो है IT एक्ट 2000 का, इट प्रोवाइड्स कि जो डिजिटल सिग्नेचर है दैट विल बी ऑथेंटिकेटेड with the use of asymmetric cryptography system and hash function. Now ये जो asymmetric cryptography है और जो hash function है, now इसका यूज किया जाएगा for the creation of digital signature as well as the verification of the digital signature. Now what is digital signature? है क्या digital signature? So hash value of a message when it is encrypted with the private key of the person, now that is called as the digital signature on that electronic document. Now the hash, it is a mathematical function basically whereby the message, जो भी मैसेज एक इंडिविजुअल लिखता है या भेजना चाहता है किसी दूसरे को, और उस मैसेज के ऊपर जब हैश को अप्लाई किया जाता है, हैश फंक्शन को अप्लाई किया जाता है, नाउ देयर विल बी द हैश आउटपुट. और इस हैश आउटपुट पे जब प्राइवेट की का यूज किया जाता है, उसको एनक्रिप्ट किया जाता है विद द यूज ऑफ प्राइवेट की, वो आपका डिजिटल सिग्नेचर में कन्वर्ट करता है इसको, और उसी को हम डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं. नाउ डिजिटल सिग्नेचर हर पर्सन का इट वेरीज फ्रॉम डॉक्यूमेंट टू डॉक्यूमेंट, एंड बिकॉज ऑफ दिस हर एक डॉक्यूमेंट जो है, जब भी एक पर्सन इंडिविजुअल
एक डॉक्यूमेंट को डिजिटली साइन करेगा तो हर एक डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी को डिजिटल सिग्नेचर जो है वो रिकॉग्नाइज करता है। और क्योंकि जब हम वेरिफिकेशन की बात करेंगे तो देर आर टू काइंड्स ऑफ की, वन इज प्राइवेट की एंड द अदर वन इज द पब्लिक की। सो द पब्लिक की जो साइनर की है, नाउ दैट इज अवेलेबल विद द पर्सन टू whom द मैसेज इज सेंट। वो किसी को भी शेयर कर सकता है पब्लिक की जो ओरिजिनेटर है। तो कोई भी पर्सन जिसके पास वो पब्लिक की उसकी है, तो वो पर्सन उस मैसेज को देख सकता है और उसको रिसीव कर सकता है एंड वेरीफाई कर सकता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये ओरिजिनेटर ने ही या उसी पर्टिकुलर पर्सन ने भेजा है। Now we come to why digital signature is necessary or what it provides. Now the first thing is it provides the authenticity, integrity and non-repudiation to the electronic documents. एक तो ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करता है और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है वो रेपुडिएट नहीं किया जा सकता है, कोई और पर्सन उसको देख नहीं सकता है, उसको व्यू नहीं कर सकता है एक्सेप्ट वो पर्सन जिसके पास की पब्लिक की होगी, प्राइवेट की जो ओरिजिनेटर है उसकी पब्लिक की होगी, उसके अलावा कोई और इसको नहीं देख पाएगा। Second thing is that digital signature, it also provides a mechanism whereby internet, it can be used as a safe and secure medium for various electronic commerce and e-governance activities. So this is how digital signature, it is important. Now we come to the requirement for creating digital signature. अब हमें क्या क्या चाहिए डिजिटल सिग्नेचर के क्रिएट करने की जब हम बात करते हैं। सो द टू important thing they are the, when we talk about the digital signature, we have discussed that we needs to follow the asymmetric cryptography and hash function. अब asymmetric cryptography में now we will talk about two keys, two kinds of key. और पहली जो की है जो क्रिएट डिजिटल सिग्नेचर के क्रिएशन में यूज होगी, दैट इज प्राइवेट की। एंड एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, प्राइवेट की इज वन विच इज एक्सेसिबल ओनली टू द साइनर। ये किसी के साथ शेयर नहीं की जाती है, इट इज ओनली नोन टू द person who is the owner or who is the signer, we also call. Now private key is used to generate digital signature which is attached to the message itself. Second kind of key is public key, and the public key, it is available to any person to whom the signer wants that key to be available. किसी के साथ भी इस की को शेयर किया जा सकता है जिसको साइनर चाहता है कि वो उसका मैसेज देख पाए, व्यू कर पाए, तो उसके साथ इसको शेयर किया जा सकता है। सेकेंडली, प्राइवेट की के साथ जब मैसेज को इनक्रिप्ट किया जाता है तो उस मैसेज को डिक्रिप्ट या वेरीफाई ऑफ डिजिटल सिग्नेचर की जब हम बात करते हैं तो वेरिफिकेशन के लिए आपका पब्लिक की को यूज किया जाएगा। तो पब्लिक की वेरीफाई करेगी उस डिजिटल सिग्नेचर को जो क्रिएट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट की। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस फॉर क्रिएशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर एज पर आईटी एक्ट 2000। नाउ आईटी एक्ट एक स्पेसिफिक प्रोसीजर ले डाउन करता है जब हम क्रिएशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर की बात करते हैं। So Rule 4 of IT Certifying Authority Rules 2000, ये आपका डिजिटल सिग्नेचर के क्रिएशन का जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करता है। नाउ फर्स्ट थिंग इट सेज दैट टू साइन एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, जो हम डिजिटल सिग्नेचर की बात करते हैं, डिजिटली साइन करने की बात करते हैं, फर्स्ट थिंग इट सेज इज दैट द साइनर फर्स्ट विल अप्लाई द हैश फंक्शन इन द साइनर सॉफ्टवेयर। द फर्स्ट थिंग, जो साइनर है वो जो भी मैसेज है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है, टेक एनी एग्जांपल, वो मेल भी हो सकता है। तो अगर कोई मेल करना चाहता है, किसी को पर्सनली मेल करना चाहता है, सो सबसे पहला जो फंक्शन वो यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर जब हम क्रिएट करेंगे उस वक्त करना होगा, दैट इज टू अप्लाई द हैश फंक्शन। हैश फंक्शन अप्लाई किया जाएगा जो भी आपका कंटेंट है उसके ऊपर।
And when hash function is applied on the content, it converts that data or that content into a fixed साइज ऑफ डेटा, एक फिक्स साइज में वो डेटा को कन्वर्ट कर देता है और इसको हम हैश वैल्यू कहते हैं, हैश आउटपुट वी कैन से, और हैशेस वी कैन से, और हैश डाइजेस्ट it is also called. This is the first step. Then after this, the hash function, it computes data or the result of a standard length which is unique to electronic record. So एक standard length में इसको वो convert करता है जब हम hash apply करते हैं किसी भी electronic document के ऊपर. Then after, the signer software that transfer hash result into a digital signature using the signer's private key. अब जो हैश रिजल्ट हमारे पास आता है जब हम किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर, कंटेंट के ऊपर हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं, और जब हैश आउटपुट हमारे पास आती है, नाउ इट इज ऑन दैट हैश आउटपुट दैट द प्राइवेट की विल बी अप्लाइड. और जब प्राइवेट की उस हैश आउटपुट पे अप्लाई की जाती है, देन it converts the use of private key that converts that hash result into the digital signature. Now the digital signature, afterward, the digital signature, it is attached to the electronic record, and it can be stored and can also be transmitted now with its electronic record. Now this is all about the creation of digital signature. Now here comes the verification of digital signature. अब जब digital signature create हो गया, and now the document is sent from the side of the signer, and it is received by the receiver. Now the receiver will verify the digital signature. And as I have told you कि verification की जब हम बात करेंगे digital signature की, तो ये verify किया जाएगा with the help of public key which is there with the receiver. Now the first step in this verification process, अब verification में आप याद रखें कि दो प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा, और वो दो कौन कौन से प्रोसेस हैं. First is when the receiver receives the information or receives the whatever is sent by the signer to him. Now a new message digest is recovered from the original message by applying the hash result. It simply means कि जो information जो रिसीवर है उसको मिलता है, उस इंफॉर्मेशन पे वो हैश फंक्शन अप्लाई करता है, एंड नाउ ही विल गेट वन आउटपुट ऑफ दैट हैश आउटपुट, उसके पास एक आएगा. सेकंड इज द डिजिटल सिग्नेचर विच इज सेंट फ्रॉम द साइड ऑफ द साइनर. उसके ऊपर वो अप्लाई करेगा द पब्लिक की, और जब पब्लिक की को उसके ऊपर अप्लाई करेगा, अगेन ही विल गेट अनदर रिजल्ट. अब उसके पास दो रिजल्ट आते हैं, एक वो रिजल्ट जब वो मैसेज के ऊपर हैश फंक्शन अप्लाई करता है वो, और सेकंड रिजल्ट उसके पास आउटपुट वो आता है जब वो साइनर के मैसेज के ऊपर और डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर पब्लिक की को अप्लाई करता है. एंड बोथ दीज रिजल्ट्स दे मस्ट बी आइडेंटिकल. वो दोनों रिजल्ट एक तरह के होने चाहिए. एंड इफ both the result they are identical, that means the digital signature is verified, and that also means that that record has not been altered anyways. उस रिकॉर्ड को ना ही किसी ने देखा है और ना ही उस रिकॉर्ड को अल्टर किया जा सका है. So this is how the digital signature they are verified. Now just understand by way of this example, as you can see how digital signature is created, किस तरह create होता है. So you can see here, as you can see there is a person, a person is here. Now he is having some message, ये उसका कोई message है. Now digital signature कैसे create होगा, इस message के ऊपर जो पहला step है उसके ऊपर hash function वो apply करेगा, और जब यहाँ पे हैश फंक्शन अप्लाई किया जाएगा, नाउ ये हैश रिजल्ट यहाँ पे आएगा जिसको हम हैश आउटपुट या हैश रिजल्ट या हैश डाइजेस्ट बोलते हैं. तो जब ये रिजल्ट आएगा, नाउ इस हैश आउटपुट के ऊपर अप्लाई किया जाता है प्राइवेट की को, और जब प्राइवेट की के साथ इसको अप्लाई किया जाएगा, नाउ हियर एट दिस स्टेप डिजिटल सिग्नेचर इज क्रिएटेड, और डॉक्यूमेंट के साथ
जो डिजिटल सिग्नेचर है that is appended here. Now here the digital signature is created. Now after that, understand that how the verification of digital signature is done. Now we will study this in two ways. First is how from the side of sender मैसेज जो था वो डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट कैसे होगा, हम यहाँ भी डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम वेरिफिकेशन की बात करेंगे. नाउ सपोज दिस इज द मैसेज हियर विच इज रिटन हियर. और सबसे पहला, जैसे मैं हमने अभी तक डिस्कस किया कि सबसे पहला जो काम किया जाता है वो किया जाता है कि मैसेज के ऊपर हैश अप्लाई किया जाएगा. और जब हैश फंक्शन अप्लाई करेगा तो हमें मिलेगा यहाँ पे हैश आउटपुट. अब इस हैश आउटपुट पे अप्लाई किया जाता है आपका साइनर्स की प्राइवेट की को. और जब प्राइवेट की से इसको इनक्रिप्ट किया जाएगा तब ये इस डॉक्यूमेंट में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा. एंड नाउ हियर द डॉक्यूमेंट इज रेडी एंड द डिजिटल सिग्नेचर इज ऑल्सो अपेंडेड ऑन दिस डॉक्यूमेंट. नाउ यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट सेंड हो जाता है सेंडर को, नाउ रिसीवर के लिए. नाउ हियर द अब रिसीवर है, रिसीवर हियर गेट्स द मैसेज, दिस मैसेज वी आर टॉकिंग अबाउट. अब इस मैसेज के वो दो जो है यहाँ पे फंक्शन करेगा. एक तो मैसेज के ऊपर यहाँ पे अप्लाई करेगा हैश फंक्शन और उसको एक आउटपुट यहाँ पे मिलेगा, हैश रिजल्ट मिलेगा. सेकेंडली जो यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर है उसके ऊपर वो पब्लिक की को अप्लाई करेगा. अगेन ही विल गेट अनदर आउटपुट. ये दो आउटपुट हैं जो अभी हमने बात की थी कि उसको दो आउटपुट मिलेंगे. एक जो आपका हैश फंक्शन अप्लाई करके मिलेगा और सेकेंडली वो जो यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करने के लिए पब्लिक की का यूज करेगा तो एक रिजल्ट उसको यहाँ मिलेगा. अब ये दोनों रिजल्ट एक तरह के होने चाहिए, दे मस्ट बी इक्वल, दे मस्ट बी आइडेंटिकल. और अगर वो दोनों आइडेंटिकल हैं देन इट मीन्स द डिजिटल सिग्नेचर इज वेरीफाइड. और अगर इनमें कोई चेंज आता है, इन दोनों रिजल्ट में अगर चेंज आता है दैट मीन्स द डिजिटल सिग्नेचर इज नॉट वेरीफाइड एंड दैट ऑल्सो मीन्स दैट इट मे बी अल्टर्ड, उसमें अल्टरेशन कहीं पे हुआ है. अनदर एग्जाम्पल वेरिफिकेशन के बारे में ही ये हम बात करेंगे. हियर इज द सेंडर, he will apply hash function and hash result will be there. Hash on the hash result private key will be applied. Here the document is generated and the digital signature is created. Now this is the person who receives the message. The first thing he will do, he will apply the hash on that result and that document and he will get the hash result. और उसके बाद वो पब्लिक की को अप्लाई करेगा जो यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर है. अगेन उसको यहाँ पे एक हैश आउटपुट मिलेगा और ये हैश रिजल्ट यहाँ वाला और यहाँ का जो पब्लिक की है जो उसको अप्लाई करके रिजल्ट मिलता है, ये दोनों रिजल्ट अगर आइडेंटिकल हैं तो आपका यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई होता है. एंड अदरवाइज अगर नहीं ये इक्वल नहीं है तो दैट मीन्स समवेयर इट इज अल्टर्ड. So this is it in this. Thank you.